Hello everyone, I am Ritika Dudgar, Assistant Professor IT Department. So, in the course of Artificial Intelligence, here we are going to discuss about the LP2 lab assignments related to the Artificial Intelligence. Okay, so first we have to check the syllabus copy. See here. So this is a course of Savitribai Phule Pune University, third year Information Technology 2019 course, and where we are going to discuss about the lab practical assignment related to the artificial intelligence. Okay, so in the prerequisite of this artificial intelligence assignments related to the Python, so you must have a knowledge about the Python language, and there are list of laboratories related to group A and group B assignments. So here we are going to performing the group A assignments. So in previous video we already learned about this lab assignment, that is the implement heuristic search strategy for traveling salesman problem, where we discuss about the hill climbing algorithm, that is steep and asset hill climbing algorithm for solving the traveling salesman problem. Okay, so you can check previous lecture videos. So the second assignment is related to the NQueen problem using hill climbing or simulating annealing or A-star algorithm, and there is another program also, write a program for water jump problem or a tower of Hanoi. Okay, so in this video we are going to implementing NQueen problem using simulating annealing, and we are performing the program for the tower of Hanoi. Okay, so let us discuss here. So this is our problem statement: implement NQueen problem using simulating annealing and write a program for tower of Hanoi. This is a practical assignment number 2. Okay, so before starting the NQueen problem, first we have to learn about what is meant by simulating annealing. So simulating annealing is one of the many random optimization algorithm. Okay, so unlike the algorithms like hill climbing algorithm, where the intent is to only improve the optimization, and the simulating annealing allows for a more exploration. Okay, if we are using the simulating annealing, where we get the more exploration related to any type of problem. So the idea is that with this exploration, it's more likely to reach a global optima rather than the local optima. If we are using the simulating annealing, where we get the global optima, but if we are using the hill climbing, so in that case we get some local optima in the search space. Okay, so in this simulating annealing, we get the global optima rather than the local optima. So if you are talking about the hill climbing algorithm, at each step the current solution is replaced with the best neighbors. Okay, so but if you are talking about the simulating annealing, so in the simulating annealing we are using a downhill smooth. Okay, so this simulating annealing is attempt to overcome this problem by choosing the bad moves every once in a while. Okay, अगर हम हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हर एक नेबर्स को चेक करते हैं, बट हमें उसमें से क्या करना है, बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. ओके, उसमें से हमें बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सो उसमें कई बैड मूव्स भी हो सकती है. ओके, बट अगर हम सिमुलेटिंग एनालिसिस यूज़ करते हैं तो वो ओवरकम करता है बैड मूव्स को. ओके, हमें ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन में देगा वो, ना कि लोकल सॉल्यूशन. ओके, और लोकल ऑप्टिमा. So simulating annealing is an attempt to overcome the problem by choosing the bad moves every once in a while. So the probability of choosing the bad moves decreases as time moves on and eventually. So if we are configured it correctly and under certain conditions, the simulating annealing can guarantee to find the global optima, whereas such as guarantee is available to the hill climbing or steep and ascent descent if all the local optima in the search space has equal score or a cost. Okay, so see here there is a simulating annealing algorithm
So this algorithm can be decomposed in the 4 simple steps. First step is the first step is start at the random point x. Okay, we have to start any random point. Okay, choose a new point xj on the neighborhood n of x. Okay, choose a new point xj. ओके रैंडमली हम कोई भी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के अंदर डिस्कस किया है कि कोई भी हम सिटी चूज़ करेंगे या फिर रूट पाथ चूज़ करेंगे रैंडमली. 0 1 2 3 हो सकता है, 2 3 0 1 हो सकता है. रैंडमली हमने कोई भी चूज़ किया था पाथ, उसमें से हमने रूट लेंथ को फाइंड आउट किया था. सो सिमिलरली हियर वी हैव टू फाइंड आउट एनी रैंडम पॉइंट विच इज़ कॉल्ड एज द स्टार्ट पॉइंट. सो हियर वी आर यूजिंग द x. Choose a new point xj on the neighborhood n of x. Then decide whether or not to move the new point xj. अगर xj को हमें मूव करना है या नहीं करना है. सो वो डिसीजन हम किसके ऊपर लेंगे. सो डिसीजन विल बी मेड बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी फंक्शन. ओके, बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी फंक्शन कि जो भी हमने न्यू पॉइंट यूज़ किया है उसको हम कहाँ पे मूव करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी मूव करने के लिए, ज़रूरी है या नहीं है. सो ये हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. So probability function is so p of x comma xj comma t is the function that will guide us whether we move to the new point or not. Okay, whether we are moving, we have to move the new point or not. So let us explore this function is in detail. So here the f of x is what is the objective function. Okay, this is the objective function. So the function for which we want to find the optimal point x. Okay, and if the new point xj, okay, so f of x is what here objective function for the finding the optimal point x. And if the new point xj, okay, so this is a new point, fj improves the result of the objective function. Okay, xj अगर हमारे प्रीवियस वाले रैंडम पॉइंट को अगर इम्प्रूव करता है तो हम क्या करेंगे, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल मूव टू द न्यू पॉइंट विद द प्रोबेबिलिटी 1. ओके, विद द न्यू प्रोबेबिलिटी 1. अगर ये हमारा एग्जैक्ट न्यू पॉइंट की फंक्शन की वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन, अगर एफ ऑफ एक्स से ज़्यादा आती है तो हम क्या करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे हमारे प्रोबेबिलिटी को 1 से. ओके, सो व्हेन द न्यू पॉइंट डज नॉट इम्प्रूव द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ओके, जो भी प्रीवियस वाला फंक्शन है वो एज इट इज़ रहेगा, न्यू वाला फंक्शन कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा प्रीवियस वाले के ऊपर. सो वी विल मूव टू द न्यू पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स जे माइनस एफ ऑफ एक्स एंड द वेरिएबल टी e raised to the power. Okay, so where the t is a high, the possibility of moving to the new point, it will be also high, and when t is a low, the possibility of the moving to the new point is also low. Okay, depending on the t. जितनी t की वैल्यू हमारी हाई होगी, जितनी t की वैल्यू हमारी हाई होगी उतनी हमारी पॉसिबिलिटी मूविंग की ज़्यादा होगी. t की वैल्यू जितनी कम उतनी पॉसिबिलिटी मूविंग की कम होगी. ओके, सो दैट्स वाई इनिशियली वी आर स्टार्टिंग विद द हाई टी. ओके, इनिशियली हमें स्टार्ट टी की वैल्यू हाई रखनी है. so to for the more exploration and gradually lower the value of t to reach to the optimal value or a point. So we know how the algorithm works, and it's time to perform an example using the Python in order to take our understanding further. Okay, so how to use this type of simulating annealing algorithm in NQueen problem, 8-queen problem, or we can say that NQueen problem. So here the 8-queen problem using the simulating annealing, where we are using the Python program implementation. So before starting the Python implementation, first we understand what is meant by 8-queen problem. Okay, and what are the constraints are used in this 8-queen problem. The 8-queen problem consists in the positioning 8 queens. Okay, total 8 queens we have in an 8x8 table boards, 8 rows and 8 columns, without any them being on the line of attack between each other. जितने भी हम 8-queen प्रॉब्लम 8 क्वींस यूज़ करने वाले हैं उसको हमें क्या करना है, ये 8x8 मैट्रिक्स के टेबल के ऊपर प्लेस करना है, बट विदाउट अटैकिंग बिटवीन ईच अदर.
सो क्वींस कैन मूव हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे देखो हमने एक क्वीन कंसिडर किया है, ओनली वन क्वीन कंसिडर किया है। सो क्वींस कैन मूव हॉरिजॉन्टली भी हम इसको मूव कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, वर्टिकली भी हम इसको मूव कर सकते हैं, एंड डायगोनली जहाँ पे मैंने डॉट्स दिए। सो ये क्वींस को पॉसिबिलिटीज़ कितनी मूव करने की है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड डायगोनली। ओके, सो ये होगा हमारा प्रॉब्लम। ये हमारे पास एक क्वीन है, इसको हम हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, वर्टिकली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, नीचे भी हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। डायगोनली पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये डायगोनल हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक डायगोनल, एंड ये यहाँ से यहाँ तक डायगोनल हो जाएगा। ओके, सेम हमें हर एक क्वीन के लिए चेक करना है, बट द कंडीशन इज़ व्हाट हियर, विदाउट एनी ऑफ देम being on the line of attack between each other. Okay, so this is our constraint. So here the finding the solution to the problem is not easy since a great number of combination exist. So we can see more solutions in this image where only 6 and 7 queens were positioned in the board. Okay, 6 and 7. So see here, 1 2 3 4 5 6 queens are here, 1 2 3 4 5 6 7 queens are here. Okay, so this is our solutions. So 6 queens अगर हमारे पास है तो देखो ये यहाँ पे ये अगर क्वीन कंसिडर करती तो ये हॉरिजॉन्टल भी एक ही क्वीन है, ये पूरे कॉलम ये जो वर्टिकल है उसमें भी एक ही क्वीन है, और डायगोनली अटैक नहीं कर रही दूसरे क्वीन के साथ। ओके, सेम अगर ये क्वीन मैं कंसिडर करती हूँ तो डायगोनली दूसरी कोई भी क्वीन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दूसरी क्वीन को ये अटैक नहीं करता है। ओके, अगर ये क्वीन मैं कंसिडर करती हूँ तो वर्टिकली ऊपर नीचे कोई भी नहीं है, हॉरिजॉन्टली भी दूसरी क्वीन नहीं है, और डायगोनल जो है इसका यहाँ पे भी नहीं है। सेम ये जो क्वीन है इसका डायगोनल नहीं है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है। ये क्वीन के लिए भी डायगोनल कोई भी क्वीन नहीं है, वर्टिकली भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं है। और यहाँ पे भी देखो डायगोनल जो है इसका, ये वाला जो इसका डायगोनल है, यहाँ पे एक भी क्वीन नहीं है अटैक करने के लिए, ये भी यहाँ पे और यहाँ पे भी नहीं है हॉरिजॉन्टल। सो ये क्या है हमारा फाइनल सोल्यूशन है, जहाँ पे हमने 6 क्वींस और 7 क्वींस को यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम के अंदर क्या है, n क्वीन प्रॉब्लम यूजिंग सिमुलेटिंग एनालिसिस, बट हम इम्प्लीमेंट क्या करें यहाँ पे 6 7 4 क्वीन को भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या किया है कि हमने 8 क्वीन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। So we understand this problem, go through the Python code, and we are solving this type problem by using the Python program. So see here, this is a Python implementation. So if you are solving this 8 queen problem by using simulating annealing in Python, so there exists a library MLRows. Okay, MLRows. So first part is what, importing the necessary libraries. So the library MLRows, that is very helpful for implementing the random optimization algorithm. This library is useful for the random optimization algorithm. So solve the first few lines of the code. So we will importing the library as well as a NumPy library as a NP. Okay. So this is the first step. Then second step is what, defining the objective function. So the next step is defining is the objective function. Okay, so the objective function will count the number of queens that are positioned in the place where they cannot be attacked. Okay, so objective function हमारा क्या होना चाहिए कि हमारे क्वींस अटैक नहीं होने चाहिए दूसरे क्वींस के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास गिवन एरे है जहाँ पे 0 2 1 3 7 4 5 6, सो हमने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों भी हम कंडीशन से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, वर्टिकली वैल्यूज़ दिए हैं। ओके, सो हमें क्या करना है, 0 के ऊपर ये क्वीन होगी, फर्स्ट के ऊपर हमारी क्वीन, सेकंड के ऊपर कौन सी क्वीन होनी चाहिए। ओके, सो इस वजह से 0 0 के ऊपर ये क्वीन होगी, देन सेकेंड में के ऊपर ये क्वीन होगी यहाँ पे हमारी, देन फर्स्ट के ऊपर हमारी ये क्वीन यहाँ पे हमने प्लेस की है,
3, यहाँ पे हमने क्वीन, यहाँ पे ये लाइन के ऊपर ये क्वीन प्लेस होनी चाहिए। 7 के ऊपर ये क्वीन हमने यहाँ पे प्लेस की है। 4, ये 5 एंड 6। ओके, सो ये कुछ हमारे पास कंडीशन है। मीन्स रो ये क्वीन का रो यही होना चाहिए, बट हम कहीं पे भी इसको प्लेस कर सकते हैं। ये रो, ये क्वीन जो होगी इसका 1 वैल्यू ही होनी चाहिए, फर्स्ट रो ही होनी चाहिए, इसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। बट ये हमारा सॉल्व प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हियर these 3 queens are attacking each other by diagonally. Okay, yeah, these 4 queens, okay, these 4 queens are attacking diagonally. Similarly, these 2 queens are attacking diagonally. Okay, and remaining is okay, vertical horizontally satisfied नहीं करता है. Okay, so here the next step is what objective function. The objective function will count the number of queens that are positioned in the place where they cannot be attacked. So give the queens move vertically. So it is responsible to say that the no queen should be placed in the same vertical, and thus we cannot represent the position of each queen in the simple array of 8 position. Okay. So here let us check with the Python implementation. Here I am using the Anaconda software and the Spider for Python implementation. So first मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताती हूँ. सो हमारे पास कुछ इस तरह से और पॉसिबिलिटीज़ होंगे. यहाँ पे हमने रैंडमली चूज़ किया है 4. प्रीवियसली मैंने रन किया तो रैंडमली वैल्यूज उसने 1 कंसिडर की थी, यहाँ पे 5 कंसिडर की थी. ओके, सो इंपोर्ट हमने ml rows, इंपोर्ट numpy एज ए np. यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया है. ओके, सो हियर फर्स्ट इज व्हाट डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन किया है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए. सो क्वीन मैक्स पोजीशंस. ओके, सो इनिशियली जब भी हम इसको ओके, देन वी स्टार्ट द काउंट हियर. ओके, नो अटैक ऑन अ जे इज इक्वल टू 0. ओके, जे के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए. सो क्वींस नॉट अटैकिंग इज इक्वल टू 0. देन कंपेयर द ईच पेयर ऑफ क्वीन. ओके, वी हैव टू कंपेयरिंग ईच पेयर ऑफ क्वीन. सो फॉर आई इन रेंज, लेंथ हमारे पास पोजीशंस, टोटल पोजीशंस कितने हैं हमारे पास 8. 8 - 1 रेंज क्या होनी चाहिए. फिर 0 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 0 + 7 तक हमें चेक करना है. नो अटैक ऑन जे इज इक्वल टू 0. जे की वैल्यू को हम क्या कंसिडर करेंगे, i+1. सो 0 और 1 को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं. मीन्स वॉट, ये अगर मेरा 0 है और ये अगर मेरा 1 है, तो 0 और 1 को हमें कंपेयर करना है कि ये अटैक नहीं होना चाहिए, ये 2 क्वींस अटैकिंग नहीं होनी चाहिए. तो 0 को अगर मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, एंड सेकंड वाली जो क्वीन है Q1 जो है मेरे पास, वो मुझे कंपेयर करना है कि वर्टिकली यहाँ पे मैंने प्लेस किया तो इज इट ओके, बिकॉज दिस 2 क्वींस आर नॉट अटैकिंग हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल एंड डायगोनली. ओके, सो हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वीन एंड सेकंड क्वीन को चेक करना है, उसकी पोजीशंस को, कि वो डायगोनली, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अटैक नहीं होने चाहिए. सो सेम पोजीशंस को हम चेक करेंगे. एंड पोजीशन ऑफ जे, पोजीशन आई + j - 1, बिकॉज यहाँ पे देखो पोजीशन ऑफ जे इज वॉट 0. पोजीशन ऑफ जे मीन्स वॉट, यहाँ पे 1 0. ओके, बोथ आर नॉट इक्वल. Position of j means what, 1 is not equal to position of 0 plus 0. Okay, 1 - 0 + 1, sorry. Okay, so 0 + 1 1. तो सी हियर, इफ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी फर्स्ट क्वीन और 0th वाली जो क्वीन है उसको हमें अटैक नहीं करना है. सो ये वाले केस में हमारे पास फर्स्ट वाला पोजीशन वैल्यू क्या है, पोजीशन if condition position of j, that is 1 is not equal to 0. Yes, and position of j, that is 1 is not equal to position of 1 plus 1 minus 0.
position of 1 plus एंड पोजीशन ऑफ जे. सो यहाँ पे इसका ब्रैकेट जो है 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0. यस. एंड हमें और एक कंडीशन क्या चेक करनी है, position of j is not equal to position of j, that is 1 plus 1 minus 0 1, that is 2. okay, so ये 2 होना चाहिए. And position of j, that is 1, is not equal to position of I, that is 0 minus j minus 1, 1 minus 0 1 minus 1. okay, so means what, 1 is not equal to 0. yes, 1 is not equal to 0. yes, 1 is not equal to 2. 1 को हमें 2 के साथ भी कंपेयर करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है क्या. यस, दोनों इक्वल नहीं है. और 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1. सो इसके प्रीवियस वाली जो भी वैल्यूज़ होगी उसको भी हमें चेक करना है. अगर नहीं है सो नो अटैक ऑन जे इज़ इक्वल टू जे. जे की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे. मीन जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी यहाँ पे 1 थी तो नो अटैक ऑन जे इज इक्वल टू नो अटैक ऑन जे प्लस. सो इनिशियली 0 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी. सो कंटिन्यूसली हमें क्या करना है, प्रीवियस वाली क्वीन की वैल्यू और नेक्स्ट वाली क्वीन की वैल्यू को यहाँ पे कंपेयर करना है. सो सी हियर, so after that we are checking here the so here we are checking if there is any diagonal or horizontal attack. So iteration process for each column. okay, and here after that j minus 1. after that if there is an attack on the evaluated column, the count is increased by 1. okay, so यहाँ पे हमने क्या किया है, काउंट को इंक्रीज किया 1. and if there is a attack on the no on the column, the general counter is increased by 1. so this counter indicate the number of queens that are correctly positions. and after that attacking plus minus 1. so after that condition is here, the return number is the number of queens not attacking each other. so if the number is 7 here, so we add 1 cause it means that the last queen is also free of attack. okay, last queen is free of attacking. okay, so here the objective function previously defined here is assigned as an argument to the method custom fitness. okay, for the queen max. okay, जो भी हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा है, हमने क्या किया यहाँ पे, मेन हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है हमने क्या किया है, कस्टम फिटनेस से क्वीन मैक्स फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है. ओके, उससे पहले ओके, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रीवियसली. सो कस्टम फिटनेस हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ से मिला हमें, बाय यूजिंग दिस लाइब्रेरी एमएल रोज कस्टम फिटनेस क्वीन मैक्स. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक रिटर्न स्टेटमेंट जो कि क्वीन नॉट अटैक की रिटर्न मिलेगा. यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को पास किया है. देन सो दिस इज़ अ सिंपल ट्रिकी पार्ट. फर्स्ट हमें क्या करना है, ये लाइब्रेरी से क्वीन मैक्स फंक्शन को कॉल करना है. यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. बिकॉज हियर डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमने डिफाइन किया ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, एंड देन हमें क्या करना है, ये वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करना है. ओके, नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, ये कस्टम फिटनेस फंक्शन तो हमने कॉल किया. ओके, यहाँ से हमने एक रिटर्न वैल्यू मिली ऑब्जेक्टिव की. तीन हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट. ओके, so the only thing remembering is to tell ML rows the type of the problem has to solve. So the problem we are solving has some discrete numbers. Okay, the next step is what, discrete number problem solving using the method discrete OPT. Okay,
So the discrete number means what? We have whole numbers. That's why we use the method discrete OPT. So this method will hold the description of the problem, and it has a 4 argument. Okay, discrete OPT has a 4 argument. First is a length, then fitness function, then maximize, and then max value. Okay, so what is mean by length here? So the length is the size of an array and we are working with. Okay, जितनी size of array को हम यूज़ करने वाले हैं वो क्या होगी, लेंथ. सो यहाँ पे कितने array है हमारे पास, कितने साइज़ के लिए हम 8 क्वीन प्रॉब्लम मीन्स हमारे पास टोटल 8 क्वींस है, मीन्स array क्या होनी चाहिए 8. सो फॉर द 8 क्वीन प्रॉब्लम वी आर यूजिंग द 8 नंबर ऑफ लेंथ. Then the next part is the fitness function. So the objective function we previously defined. Okay, that is the objective function की वैल्यू हमें यहाँ पे कुछ रिटर्न मिलेगी, वो क्या होगा हमारा fitness function value. Okay, so we are passing the objective function value into the fitness function. Then third is the maximize. So it must be true if we want to maximize the objective function and false otherwise. ओके, हमें जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू वो मैक्सिमाइज रखनी है, तो ये ऑलवेज ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज ये फॉल्स होगा. एंड लास्ट इज द मैक्स वैल्यू. सो दिस पैरामीटर इंडिकेट द मैक्सिमाइज वैल्यू फंक्शन कैन टेक. ओके, सो ये मैक्स वैल्यू कितनी, हमें तो ये पता चला कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जितनी मैक्सिमाइज होगी वो बेटर होगा हमारे लिए. ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए, बट उसकी रेंज यह होनी चाहिए. ओके, सो इट स्टार्ट in the 0 and ends with the max value -1. Okay, max value -1. So in our case the queen can position from 0 to 7. इस total values कितनी है हमारे पास x. So max value क्या होनी चाहिए 8. So always the max value starts from 0 to 7. max underscore value -1 means अगर मैक्स वैल्यू की वैल्यू 8 है, सो हम 0 से स्टार्ट करेंगे 8 माइनस में 7 तक. तो हमारी मैक्सिमाइज रेंज क्या होनी चाहिए 0 to 7. दैट मीन्स हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की रेंज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमाइज वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 to 7. ओके, सो हियर द लाइन ऑफ कोड ऑफ दिस डिस्क्रीट ऑप्शन इज OPT is ML rows. से हमें ये लाइब्रेरी मिली है मेथड डिस्क्रीट OPT. देयर आर 4 पैरामीटर. लेंथ इज 8. फिटनेस फंक्शन इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव. जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो हमारा फिटनेस फंक्शन होगा. मैक्सिमाइज की वैल्यू हमें ट्रू रखनी है एंड मैक्स वैल्यू हमारी 8 होगी. दैट मीन्स रेंज वो ऑटोमेटिकली 0 to 7 तक कंसिडर करेगा. ओके, सो ये जो हमें मिलेगा रिजल्ट वो होगा हमारा प्रॉब्लम. देन so finally it's time to tell the ML rows how to solve the problem. Okay, so we know why we are using ML rows here, for the optimization problem. Okay, ML rows library is used for getting the optimization problem. So we know we are going to use the simulating annealing and it's important to specify the 5 parameters. Okay, so you see here the next part is use the simulating annealing and the 5 parameters are problem, schedule, max attempts, max iteration and init state. Okay, so this is our initial position NP array जहाँ पे हमने initial positions के value insert की है. then ML rows, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन से स्टार्ट किया है. ओके, पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्वीन मैक्स जो है ये फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे एक वैल्यू हमें रिटर्न मिली. ओके, डिस्क्रीट ऑप्शन, देन ML rows डॉट एक्स, ये लास्ट में एग्जीक्यूट होगा. देन NP जो भी हमारे नंबर है उसमें से एरे हमने इनिशियल पोजीशंस में डाले हैं. तो यहाँ पे देखो ML rows सिमुलेटिंग एनाली हम एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे 5 पैरामीटर्स क्या है, प्रॉब्लम, शेड्यूल, मैक्स अटेम्प्ट, देन मैक्स इटरेशन एंड इनिट स्टेट. सो यहाँ पे प्रॉब्लम मीन्स व्हाट दिस पैरामीटर कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम. ओके, इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम मीन्स व्हाट, ये हमारी इंफॉर्मेशन होगी. प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन क्या है, उसकी लेंथ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है जो कि फिटनेस फंक्शन में होगा, जो अदर रिमेनिंग की से वो अटैक नहीं होनी चाहिए, ये हमारा क्या है मेन मोटिव है. मैक्सिमाइज ऑलवेज 2 होना चाहिए एंड मैक्स वैल्यू 0 to 7 दैट मीन्स 8 होनी चाहिए. तो ये हमारा प्रॉब्लम को हमने क्या किया, डिफाइन किया यहाँ पे. सो दिस पैरामीटर कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड वी
we are defining the name here problem. Okay, problem is equal to problem, both names are same. Then the second parameter is the schedule. So schedule or this parameter tells how to decrease over each iteration. Okay, फर्स्ट इटरेशन क्या होगा हमारा कि फर्स्ट वाली क्वीन और 0 और 1 को हमने कंपेयर किया है, 1 के बाद 2, 1 के बाद 3, 1 के बाद 4, 1 के बाद हम 5, 1 to 6, 1 to 7 क्वीन तक हम चेक करेंगे. सो 0 और 1 हमने ऑलरेडी कंपेयर करके दिया है, सो 0 1 को हमें मूव करने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड टाइम जब मैं सेकेंड क्वीन को अगर चेक करती हूँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं सेकेंड क्वीन को अगर चेक करती हूँ मीन्स व्हाट, ये वाले फर्स्ट तो हमारा ऑलरेडी सेट है, 0th क्वीन भी हमारी ऑलरेडी सेट है, फर्स्ट Q1 भी ऑलरेडी हमारा सेट है, पर मुझे Q2 को अगर चेक करना है, सो इसके इटरेशन में 0 और 1 को हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. जो भी रिमेनिंग है Q2 Q3 के साथ कंपेयर होगा कि डायगोनल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल अटैक करता है क्या. Q2 और Q4 को हमें कंपेयर करना पड़ेगा, Q2, Q4, 5, 6, 7. ओके, सो ये चेक करने के बाद हमें सम Q2 की पोजीशन मिलेगी. ओके, सो Q3, देन Q3 हम प्रीवियस वाले 0, 1, 2 के साथ कंपेयर नहीं करेंगे. वी हैव टू कंपेयरिंग दिस Q3 विथ Q4, Q5, Q6 एंड Q7. सिमिलरली Q4 के लिए हम Q5, सो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ इटरेशंस हमारे डिक्रीज होते जा रहे हैं. ओके, जैसे जैसे हम क्वीन को सेट करेंगे कोई भी प्लेस के ऊपर, तो अपने आप हमारे यहाँ पे इटरेशंस मिनिमाइज हो जाएंगे. तो इसलिए हमने यहाँ पे शेड्यूल डिफाइन किया है. So this parameter tells t how to decrease the over each iteration. So there are many ways to decrease the t and it's possible to check them on a MLOS library. Okay, so this time जो भी होगा t टाइम हमने यहाँ पे क्या किया है, MLROS XDK से हमने यहाँ पे यूज़ किया है. So this time t is decreases exponentially using this exponential decay method. ओके, सो ऑटोमेटिकली ये डिक्रीज हो जाएगा. यहाँ पे जो टाइम है हमारे पास शेड्यूलिंग में. नेक्स्ट है हमारे पास मैक्स अटेम्प्ट. ओके, मैक्स अटेम्प्ट. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स द एल्गोरिथम विल ट्राई टू सर्च फॉर अ बेटर सोल्यूशन. ओके, क्योंकि हमारे पास 8 क्वीन से इसको हमने कहीं पे भी प्लेस किया है, सो हमें 8 क्वीन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सो कितनी बार हमें अटेम्प्ट देने पड़ेंगे. सो यहाँ पे हमने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी डाली है, 500 टाइम्स इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट द एल्गोरिथम विल ट्राई टू सर्च फॉर द बेटर सोल्यूशन. इफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट रीचेस टू द मैक्सिमम 500 वैल्यू, so it should stop. And the next is a max iteration. कितने iterations हम कर सकते हैं, 500 iteration. Okay, so it indicates the maximum number of new points the algorithm can find, the maximum number of iteration it does. Okay, so maximum value पे हमने iteration 500 रखी है, minimize होती जाएगी वो. Okay, then init state, initial state भी हमारे पास होना चाहिए. So this parameter, that is the init state, is the initial position of the array. So initial position of array क्या है हमारे पास, 4, 6, 1, 5, 2, 0, 3, 7. ये हमारा initial position of array है. Okay, so this is a part of this simulating annealing parameters. and first हमें क्या करना है, पहले डिफाइन करना है शेड्यूल जो कि हमारा t है. तो MLROS लाइब्रेरी से वो अपने आप डिफाइन हो जाएगा. देन डिफाइनिंग द इनिशियल स्टेट, ये हमने डिफाइन किया है. देन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग सिमुलेटिंग एनालिंग, जहाँ पे हमें बेस्ट पोजीशन और बेस्ट ऑब्जेक्टिव मिलेगा. ओके, आफ्टर दैट मैक्स अटेम्प्ट है हमारे पास 500, देन मैक्स इटरेशन है 5000, एंड आफ्टर दैट बेस्ट पोजीशन फाउंड इज बेस्ट पोजीशन की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, एंड बेस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी मिलेगा हमारे पास यहाँ पे. तो यहाँ देखो हमारे पास इनिशियल वैल्यूज है कुछ इस तरह से, देन सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा. सेम आउटपुट क्या होना चाहिए लास्ट टाइम, 4, 6, 1, 5, 2, 0, 4, 6. सो यहाँ पे अनदर पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है. यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि हम रैंडमली कोई भी फर्स्ट नंबर चूज़ करें, 4, 6, 1, 5, 2, 0, 3, 7. तो हमने पहले फर्स्ट जो रो है यहाँ पे इसको प्लेस किया है,
6 नंबर पे हमने सेकंड वाली क्वीन को प्लेस किया है, फर्स्ट नंबर के ऊपर यहाँ पे प्लेस किया है, देन 5th पोजीशन के ऊपर ये वाली क्वीन है, सेकंड पोजीशन, 0th पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड 7th पोजीशन। ओके, सो इस तरह से सो यहाँ जो भी हमारा पहले वाला था प्रोग्राम इनिशियल स्टेट, ये हमारी अटैक कर रही थी। और ये वाला प्रॉब्लम में अगर आप चेक करते हो तो ये जो क्वीन है फर्स्ट रैंडमली यहाँ पे हमने 4 से स्टार्ट किया है। सो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली डायगोनल एक भी क्वीन नहीं है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल एक भी क्वीन नहीं है, क्योंकि इसका डायगोनल कुछ इस तरह से होगा। देखो ये जो डायगोनल है इसका ये डायगोनल है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है, इसका ये डायगोनल भी चेक करना है, ये भी डायगोनल चेक करना पड़ेगा। ओके, लेफ्ट एंड राइट वाला डायगोनली मैच नहीं करके। सिमिलरली एक क्वीन अगर मैं चूज़ करती हूँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं है, डायगोनली भी नहीं है। ये अगर मैं क्वीन चूज़ करती हूँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, दूसरी क्वीन नहीं है, हॉरिजॉन्टल कैसे होगा इसका, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये डायगोनल होगा इसका, और ये डायगोनली भी दूसरी कोई क्वीन को अटैक नहीं करता है। ये अगर क्वीन है हॉरिजॉन्टल वर्टिकली कुछ भी नहीं है, देन डायगोनली अगर मैं चूज़ करती हूँ तो ये कोई भी क्वीन को अटैक नहीं करता है। तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन। ओके, ये क्वीन अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ भी नहीं है, इसका डायगोनल क्या होगा, ये डायगोनल होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे भी अटैक नहीं करता। ये क्वीन अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो इसका डायगोनल क्या होगा, ये डायगोनल है इसका, और ये डायगोनल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी नहीं है। ये क्वीन अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो इसका डायगोनल ये वाला होगा डायगोनल, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ भी नहीं है। ओके, सो इस तरह से हमारा आउटपुट शो होगा। यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती है। प्रॉब्लम हमारे पास क्या था इनिशियली कि इस टाइप का 4 6 1 5 2 0 3 7, एंड देन हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, इसकी ये पॉसिबिलिटी है। 4 6 को एज इट इज़ रखा है, 0 3 1 7 5 2। ओके, अगर मैं नेक्स्ट टाइम रन करती हूँ तो रैंडमली इसने सेकंड वाला क्वीन को चेक किया है, फर्स्ट क्वीन को सेकंड पोजीशन के ऊपर प्लेस किया है, देन फर्स्ट क्वीन को 5th पोजीशन के ऊपर प्लेस किया है रैंडमली। ओके, सो दिस इज अ सिंपल 8 क्वीन प्रॉब्लम बाय यूजिंग द simulated annealing Python implementation. So in the problem statement we have another program, that is write a program for Tower of Hanoi. Okay, so see here, so this is a Python program for Tower of Hanoi, where so Tower of Hanoi is a mathematical puzzle where we have the 3 rods, A, B and C, and n number of discs. Okay, n number of discs, but here we are using the 3 discs only. So objective of the puzzle is to move the entire stack of another rod. Okay, move the entire stack on the another rod, and there is some rules we have to follow. First rule is what, only one disc can be moved at a time. Okay, then the secondly, each move consists of taking the upper disc from one of the stack and placing into the top of the another stack. Okay, that is, the disc can only be moved if it is the uppermost disc on the stack. And the third rule is no disc may be placed on the top of the small disc. Okay, no disc may be placed on the top of the small disc. Okay, so ये तीनों conditions होनी चाहिए. So the transferring the top n-1 disc from the source rod to the auxiliary rod, so it can be again throughout the fresh problem and it can be solved in the same manner. Okay, so see here there are 3 rods here and 3 number of discs, so we have to move this rod into the डेस्टिनेशन सी. तो मूव करते टाइम हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट वाली केस हमारे पास ये प्रॉब्लम है. सो हम क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, सी तक सी डेस्टिनेशन होना चाहिए. सो मैंने क्या किया है, फर्स्ट ए रॉड को सी रॉड की तरफ मूव किया है. ओके, देन बी रॉड को, जो वाइट वाला जो रॉड है, फर्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मूव किया. देन सेकेंड टाइम वाइट जो रॉड है उसको बी तरफ मूव किया है. तो हमारे पास कुछ इस तरह से पॉसिबिलिटी होगी. ओके, सो एट अ टाइम हमने क्या किया, एक ही रॉड को मूव किया है.
एट अ टाइम 2 रॉड को मूव नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम हमने और रेड को सी की तरफ मूव किया, वाइट को बी की तरफ मूव किया। सो हमारे पास कुछ इस तरह से पॉसिबिलिटी होगी। अनदर कंडीशन क्या है कि जो भी स्मॉलर रॉड होगा वो ऊपर होना चाहिए और बिगर रॉड हर टाइम नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन में बी को मैं सी के ऊपर रख नहीं सकती, क्योंकि वाइट जो भी डिस्क है हमारी वो रेड से ग्रेटर है, बट हम रेड को वाइट के ऊपर रख सकते हैं क्योंकि ये स्मॉलर है। ओके, तो सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है कि each move consists of taking the upper disc from the one of the stack and placing in the top of the another stack, and the third rule is what here, the disc may be placed on the top of the smaller disc. Okay, so स्मॉलर डिस्क हमारी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हमने सी की रॉड को डिस्क को बी की तरफ मूव किया है। सो हमारे पास कुछ इस तरह से सोल्यूशन होगा। सो डेस्टिनेशन में हमारा क्या होना चाहिए, ग्रीन रेड वाइट ग्रीन। सो डेस्टिनेशन में एट दी एंड हमारे पास ग्रीन होना चाहिए। सो एक ही तरफ हमारा एक ही रॉड है। सो मैं क्या कर सकती हूँ, एक ही तरफ जो रॉड है वो सी की तरफ मूव कर सकती हूँ। सो एंड में वो ऑटोमेटिकली सी रॉड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या होना चाहिए, सी के बाद और ग्रीन के बाद वाइट वाला रॉड आना चाहिए, बट मैं वाइट वाला रॉड नहीं चूज़ कर सकती। रेड को मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले शिफ्ट करना पड़ेगा ए रॉड की तरफ। सो ए को मैंने क्या किया है, रेड को मैंने क्या किया, ए की तरफ शिफ्ट किया। हमारे पास कुछ इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ होगी। सो हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, बी को वाइट को भी सी के ऊपर रख सकती हूँ। ओके, सो इस तरह से हमने सी की तरफ रखा एंड देन ए का सी की तरफ रख सकती हूँ, ए की सी की तरफ रख सकती हूँ। सो यहाँ पे देखो इस तरह से हमारे पास डेस्टिनेशन मिल जाएगा। इनिशियली हमारे पास सारे डिस्क ए की तरफ थे, हमने कुछ रूल्स अप्लाई किए एंड एट दी एंड हमें क्या मिलेगा, इस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा। सो दिस इज़ द टावर ऑफ एन आई प्रॉब्लम। सो वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रॉब्लम इन द पाइथन लैंग्वेज। ओके, so this is a recursive Python function to solve the tower of Hanoi. So here this is our drive code. We have here the n is equal to 4. Okay, and so here n is equal to 4, then tower of Hanoi is n comma a comma b comma c. Okay, so here a b c are the name of the rods, and then we are defining here the tower of Hanoi. So we are calling this function here the tower of Hanoi. n is our 4 value, a is the source, destination हमने यहाँ पे b रखा है और ऑक्सिलरी हमारा c है। तो जो भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, यहाँ पे डेस्टिनेशन c था, और ये वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या किया है, डेस्टिनेशन को b रखा है। ओके, सो उस हिसाब से हमें सॉल्व करना है। सो इफ n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं, मूव डिस्क 1 2 3 4। सो टोटल नंबर ऑफ डिस्क है हमारे पास 4। सो n इज इक्वल टू 1, प्रिंट मूव डिस्क 1 फ्रॉम सोर्स, इस टाइप का मैसेज होगा। सोर्स हमारे पास क्या है, सोर्स A टू द डेस्टिनेशन, D क्या होना चाहिए, हमारे डेस्टिनेशन तक उसको मूव करना है। सो B की तरफ वो मूव हो जाएगा। ओके, सो मैं क्या करती हूँ आप लोगों को, सोर्स डेस्टिनेशन, सोर्स हमारा A रखते हैं हम, डेस्टिनेशन हम C रखते हैं एंड इसकी वैल्यू B रखते हैं, जो कि हमारे जो भी हमने लर्न किया था स्लाइड में उसके साथ वो मैच हो जाएगा। ओके, सो मूव डिस्क 1 फ्रॉम A टू द सोर्स डेस्टिनेशन। ओके, तरफ हमने मूव किया है। देन अगेन रिटर्न करने के बाद n-1, n-1 वैल्यू मीन्स वॉट, हमारा डिस्क कौन सा चेक करेंगे हम, 2 को हम चेक करेंगे। सो अगेन 2 सोर्स A टू द डेस्टिनेशन B। सो हमने क्या किया है, सोर्स A टू द डेस्टिनेशन B, 2 वाले डिस्क को मूव किया है। ओके, 1 फ्रॉम सोर्स C टू द डेस्टिनेशन B, डिस्क 1 वाली हम क्या करेंगे, C टू B मूव करेंगे। C2 हमने क्या किया, इसको C के हमारा फर्स्ट रॉड था डिस्क भी, उसने B की तरफ मूव किया। देन मूव डिस्क 3 फ्रॉम सोर्स A टू द डेस्टिनेशन C, थर्ड वाली डिस्क कौन सी, हमारी ग्रीन वाली, उसको हम कहाँ पे मूव करेंगे, C डेस्टिनेशन तक उसको हम मूव करेंगे। देन 1 फ्रॉम सोर्स B टू द डेस्टिनेशन है, 1 कौन सी हमारे पास यहाँ पे, डेस्टिनेशन A तक। ओके, सो रेड हमारा B की तरफ था, वो हमने क्या किया, A की तरफ शिफ्ट किया है। देन डिस्क 2 फ्रॉम सोर्स B टू द डेस्टिनेशन C, सोर्स B2 हमने डेस्टिनेशन C तक हमने क्या किया, रॉड 2 को हमने मूव किया है। देन मूव डिस्क 1 फ्रॉम A टू C,
मूव डिस्क 1 मीन्स रेड वाला जो डिस्क है वो हम सी की तरफ मूव करेंगे। सो एट द एंड हमें सी वाला हमारा डेस्टिनेशन नोड मिल जाएगा। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ डिस्क है 3 एंड सोर्स हमने ए कंसिडर किया था एंड डेस्टिनेशन हमने सी कंसिडर किया। सो हम डेस्टिनेशन को चेंज भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ सिंपल टावर ऑफ हैनॉय प्रॉब्लम। Thank you.